welcome back to Momento Study, and we are doing chapter 1 of class 11th legal studies. So ये जितने mention topics हैं ये हम previous video में cover कर चुके हैं. If you haven't watched video 1 then the link is given in the description box. ज़रूर आप इस video को देखिए. And अब जितने भी बचे हुए topic हैं unit 1 के वो हम आज की video में finish कर देंगे. Alright, so first topic is type of states. Now all around the globe जितनी भी states हैं, जितनी भी countries हैं, वो different टाइम पर develop हुई हैं and different ways से develop हुई हैं because of various reasons and causes. Therefore हमें बहुत सारी types of states study करने को मिलती हैं and all these states have been categorized into different categories. So first state is Oriental Empire. Oriental Empire is associated with nomadic tribes. Nomadic tribes are those people जो एक जगह पर settle नहीं होते. They keep traveling from one place to another in search of food, water and basic necessities. So जहाँ पर भी उन्हें food, water and other basic necessities of life मिलती हैं, वहीं पर these nomadic people get settled. So nomadic tribes are generally settled down in places where they get the food, water and pasture means the food for their animals. The cattle which they keep उसके लिए food को बोलते हैं pasture. So जहाँ पर भी एक nomadic tribe को food, water और pasture मिल जाएगा, nomadic tribe वहाँ पर settle होती है. And most common places in historically time में अगर आप देखें तो nomadic places का settle होने का most common place था banks of river, valleys of river like Ganga river, Indus river in India, Yangtze river in China, Nile river in Egypt, Tigris river in Mesopotamia. These were the most common rivers जहाँ पे historically if you will see the history यहाँ पर most of the civilization हुई है. मतलब most of the tribes used to come and settle here. Now if this is a river and this is a river bank, अगर एक tribe यहाँ पे आएगी सेटल होने के लिए then it is very usual that various other tribes will come to settle here. And अगर बहुत सारी tribes वहाँ पे आके रुक जाएं it will lead to a formation of a city. City बन जाएगा तो eventually there will be kings, kingdoms होंगे, empires होंगे and इस way में एक normal nomadic tribe की society से हमारे पास emerge हो जाएगी state and इस state को हम बोलते हैं Oriental Empire. Second type of state is Greek city centers. Now Greek city centers basically flourished, मतलब ये develop हुए थे in the city of Athens. Athens is a city in Greece. So basically यहाँ पर जो city सबसे पहले develop हुए थे उन्हें हम बोलते थे Greek city centers. And उनके कुछ different features थे. Firstly, they used to have direct democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे वो डायरेक्टली अपनी वोट से एक किंग को इलेक्ट करते थे एंड जो उन्हें गवर्न करते थे, जो किंग उन्हें लोगों को गवर्न करता था वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के मेथड से गवर्न करता था एंड देयर वर इलेक्शन रूल्स. So Greek city centers were quite modern in adopting to these democratic policies, election rules, political organizations and direct democracy. It is very simple and short. Nothing more is given in your book also. Now the third state is Roman Empire. Roman Empire is associated with Rome and Roman जो state थी Rome था उसको 3 different periods से they passed and 3 different type of states वहाँ पे emerge हुई. First was monarchy. Monarchy means king used to rule the people. There was a king that used to rule the people. Second is republic. Republic में all the civil and military powers were given in the hands of councils who were elected annually. So there were some people जो elect किए जाते थे and उनके hands में सारी civil और military की powers given होती थी. And third comes the Roman Empire which we are going to study now. Roman Empire was extended and expanded over the parts of Europe, Asia, Mediterranean coast. So it was quite a huge empire, you can say, quite a huge state. इसी की continuation में है हमारे पास feudal state.
Now, because Roman Empire was so successful, it expanded to various places, but with time, some problems arose in their functioning, and hence Roman Empire का downfall हुआ. Downfall होने की वजह से there occurred a conflict between two main organizations. First was barbarians and second was Roman political institutions. नाउ रोमन एम्पायर को रूल कर रहे थे रोमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बट इवेंचुअली उनका डाउनफॉल होने लगा. एंड इसी चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए बारबेरियंस इवेडेड रोम. बारबेरियंस वर अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट ओरिजिनली डिड नॉट बिलोंग टू रोम, बट ये बाहर से आए एंड इन्होंने रोम को इवेड किया. सो एक्चुअली इट वॉज अ पावर टसल बिटवीन बारबेरियंस एंड द रोमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. एज अ रिजल्ट वहाँ पर फ्यूडरलिज्म इमर्ज हुआ. फ्यूडलिज्म इज अ सिस्टम which I have explained here. Feudalism basically means society को 4 parts में divide किया गया था. All the people were categorized into 4 different subheadings. At the top पे थे king, मतलब clergy you can say them. So these were the most powerful and the influential people. उनके अंडर आते थे nobles या फिर lords. These were the second wealthiest people in the Roman Empire. एंड इनके पास भी काफ़ी लैंड एंड वेल्थ होती थी. एंड दे यूज टू हेल्प किंग इन द फंक्शनिंग ऑफ द रोमन एम्पायर. थर्ड थे नाइट्स या फिर वेसल्स. इनका काम था मिलिट्री पर्पसेस में, वॉर में अगर कोई वॉर हो जाए तब दे यूज टू प्रोटेक्ट द स्टेट, दे यूज टू प्रोटेक्ट द किंग, किंग के पैलेसेस को प्रोटेक्ट करना, वो सब काम था नाइट्स का. एंड लास्टली देयर वर पेजेंट्स. पेजेंट्स मीन्स सर्फ्स. इनका काम था कल्टिवेशन करना एंड फूड को ग्रो करना. सो ऑल द पीपल वर डिवाइडेड इनटू दीज 4 बेसिक कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म. नाउ बिकॉज रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हो रहा था, सो वास्ट टेरिटरीज ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रोम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स. नोबल्स जो हमने यहाँ पे अभी क्लास पढ़ी, दिस वन, they collected lot of territories and lot of wealth, and hence nobles were the member of elite families. बहुत ही rich high class families के ये members थे जिनके पास काफ़ी wealth and social prestige था. And they become the high council officials after the decline of empire. Roman empire का decline हुआ, king took over and king के under जो सबसे highly qualified officials थे वो थे nobles. And hence a community of hierarchy was based on the ownership of land holding. Now ownership of land holding यहाँ इसलिए कहा है क्योंकि king के पास सबसे ज़्यादा land holdings होती थी, then nobles, then knights, and सबसे least land होता था peasants के पास. Now we come to the nation state. This is a different category of state. Now various factors led to the decline of feudalism. सबसे पहले रोमन एम्पायर था, उसका डिक्लाइन हुआ तो फ्यूडलिज्म आया. नाउ फ्यूडलिज्म का भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिक्लाइन हो गया, एंड दिस गेव राइज टू अ वेरी डिफरेंट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं नेशन स्टेट्स. नेशन स्टेट्स में अथॉरिटी होती है एक सेंट्रल एजेंसी के पास. फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट हो गया या पार्लियामेंट हो गई, ऐसा कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाती है जिनके पास सारी पावर होती है टू रूल द कंट्री. इवेंचुअली इसके साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ एंड रेनेसेंस भी हुआ. दीज टर्म्स यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर पॉलिटिकल साइंस. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स मशीन्स का यूज़ होने लगा. पहले हैंड से काम होता था, बट देन मशीन्स emerged and various things were done on machines. Then Renaissance means people got themselves educated. It was a cultural movement जहाँ पे people got to know about their rights. But this is not very important. These two terms are not so important. You just need to memorize कि feudalism का fall हुआ, which led to a rise of centralized authority, जिसका नाम हुआ नेशन स्टेट. अब इस स्टेट के फीचर्स ये थे कि किंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन.
people used to manage their own religion. People started demanding for their civil and political rights because लोगों में awareness आने लगी, तो लोगों ने political and civil rights मांगने शुरू किए. French Revolution हुआ which eventually led to the modern nation state जो अब हम follow करते हैं in most of the countries around the globe. Lastly we have international entities. International entities मतलब international organizations at the global, at the international level. You must be knowing after World War II, United Nations was set up, UNO, in 1945 to avoid any kind of war in the future. Then there is European Union, North Atlantic Treaty Organization, WTO, World Organization, and various other organizations have been established till now, जिनको हम international organizations बोलते हैं. So these are the various type of states. Next topic है elements of state, that एक state को form करने के लिए हमें क्या requirement है. So firstly we need population, then territory, third government, and fourth sovereignty. Population means the people living in the country, which will be known as the citizens of that country. Population can be homogeneous or heterogeneous in terms of race, religion, language or culture. This means that people can be following only one religion या फिर बहुत सारे religions को follow करें. For example, India में we have a lot of religions being followed. But there are countries जहाँ पे लोग सिर्फ एक type of religion follow करते हैं. Second element है territory. Territory is basically the geographical area जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. अब टेरिटरी में इंक्लूड होता है फर्स्टली द लैंड ऑफ दैट कंट्री, सेकंड इंटरनल वाटर्स लाइक रिवर्स, थर्ड एयर स्पेस, जितना भी हमारा स्पेस अबव हमारी कंट्री होगा दैट विल बी आर एयर स्पेस, एंड द नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री से ओरिजिनेट हो. सो टेरिटरी इज बेसिकली द फिजिकल बेसिस, फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द स्टेट. Third comes government. Government is the organ of the state जो state को manage करती है. For example, India में हमारे पास है legislature like the parliament, executive मतलब the president, and judiciary मतलब various supreme courts and high courts. अब government में पंचायत भी include होते हैं, ग्राम सभा, municipal councils, all these bodies will be considered as government. एंड गवर्नमेंट इज़ द वन जो लॉ एंड ऑर्डर का टेक केयर करती है, डिफेंस, टैक्सेस के लिए प्रोविजंस बनाती है, लॉ बनाती है, रोड्स एंड ब्रिजेस की मेंटेनेंस रखती है, एंड हेल्थ, एजुकेशन, ऑल दीज वेरियस फैक्टर्स कम अंडर द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट. लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट है सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी अब टू टाइप्स की होती है, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है दैट पीपल जो एक कंट्री में एक स्टेट का पार्ट है, जो स्टेट में रह रहे हैं, वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, उनके लिए उस स्टेट के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होंगे एंड फाइनल होंगे. दिस सिंपली मीन्स दैट पीपल लिविंग इन अ स्टेट आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट एंड दे आर बीइंग वेरी मच ओबीडियंट टू देयर गवर्नमेंट. एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब होता है जो एक स्टेट है वो एक्सटर्नल कंट्रोल या इन्फ्लुएंस से फ्री है. मतलब एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. इंडिया मैनेज इट्स ओन अफेयर्स. हम अपने जितने भी वर्किंग्स एंड अफेयर्स होते हैं खुद से मैनेज करते हैं, हमारे ऊपर किसी भी और कंट्री का रूल नहीं चलता. दिस मीन्स एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. So state enact their own laws and foreign policy if they have external sovereignty. Now we come to our next topic, that is role of state. So depending किस तरह का रोल, किस तरह के फंक्शंस एक कंट्री दैट इज़ एक स्टेट परफॉर्म करती है, उस बेसिस पर स्टेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट कैटेगरी इज मिनिमल स्टेट्स. जो मिनिमल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो गिवन था क्लासिकल लिबरल्स के तरफ से, एंड इसमें थिंकर्स इंक्लूड होते हैं जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम,
J.S. मिल एंड हर्बर्ट स्पेंसर। मिनिमल स्टेट्स के कॉन्सेप्ट का मतलब है एक स्टेट का बहुत ही ज़्यादा मिनिमम इंटरफेरेंस होगा लोगों की पर्सनल लाइफ में, एंड रोल ऑफ स्टेट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरफेरेंस। मतलब इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को इम्पोर्टेंस दी है और स्टेट किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी या प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ये पावर है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस करें वो वॉलेंट्री होंगे एंड फ्री होंगे। सो मिनिमम आपको वर्ड से ही पता होगा कि ऐसी स्टेट जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू लेज़िस फेयर, जिसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद से सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे। एंड ये लेज़िस फेयर का कॉन्सेप्ट बोलता था अगर स्टेट का इंटरवेंशन सबसे कम होगा तभी एक स्टेट में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। सो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए, स्टेट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगी एक्टिविटीज़ में। सो अब स्टेट का रोल होगा क्या? स्टेट को सिंपली 3 to 4 फंक्शंस गिवन है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मतलब अगर कोई और कंट्री अटैक कर रही है तो उसको देखना, मेंटेन द डोमेस्टिक ऑर्डर, पीस एंड पुलिस की एक्टिविटीज़ को देखना, एंड इन्फोर्स द अग्रीमेंट्स। सिर्फ सिंपली ये रोल्स होंगे स्टेट के, बाकी स्टेट किसी भी एक्टिविटी में इंटरवीन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेट है डेवलपमेंटल स्टेट। डेवलपमेंटल स्टेट का कॉन्सेप्ट वॉज सपोर्टेड बाय चार्ल्स जॉनसन, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मिनिमल स्टेट कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। डेवलपमेंट स्टेट मतलब स्टेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन कर सकती है, स्टेट ही सारी प्लानिंग करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, स्टेट ही सब कुछ रेगुलेट करेगी। सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कोई लिबर्टी नहीं है बिकॉज इस कॉन्सेप्ट में स्टेट इंटरवीन कर सकती है। सो स्टेट के यहाँ पे 2 रोल्स हैं। फर्स्टली हार्नेस द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, एंड सेकेंडली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, मतलब जितने भी बिजनेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए पॉलिसीज़ बनाना एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस रखना। सो सिंपली मीन्स स्टेट का इंटरवेंशन हर एक्टिविटी में होगा। थर्ड टाइप ऑफ स्टेट इज सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही आइडियल है, यू कैन से इट इज़ द रोल मॉडल स्टेट। It is based on the principles of fairness, equality, equal distribution of wealth, social, political and economic justice, equality and empowerment of people. So ये जितने भी यहाँ पे mention है concepts, these all are related to very ideal state, कि एक ऐसी country जहाँ पे fairness है, equality है, जो wealth है वो equally distributed है लोगों के बीच में, justice है सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, इक्वालिटी प्रमोट होती है, मतलब किसी भी तरह का किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एंड पीपल आर एम्पावर्ड टू टेक देयर ओन डिसीजंस। सो दिस इज़ अ वेरी आइडियल स्टेट, एंड इनका फोकस मेनली होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर एंड सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। बेसिकली ये अपने कंट्री को प्रॉस्परस बनाना चाहते हैं और लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स। सो कलेक्टिवाइज्ड स्टेट्स बेसिकली इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल करती हैं। जितने भी कॉमन ओनरशिप होते हैं, मतलब जितने भी बिजनेसेस या इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट के खुद के कंट्रोल में होते हैं। दिस इज़ बिकॉज स्टेट चाहती है कि वो खुद से सारी चीज़ों को कंट्रोल करें एंड सबका वेलफेयर कर सकें। इट इज़ नॉट कि सिर्फ पुअर लोग पुअर होते जाएंगे एंड रिच लोग और रिच होते जाएंगे, ऐसा इस स्टेट का पर्पस नहीं है। ये स्टेट बोलती है कि हम सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल का ध्यान रखेंगे। सो इस स्टेट में स्टेट लॉज भी बनाती है टू कंट्रोल द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो यू कैन सी कि सिटीजन्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर भी कोई फ्रीडम नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स भी स्टेट के कंट्रोल के अंडर होती हैं। एंड स्टेट टेक्स केयर ऑफ इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। स्टेट ही सारी इकोनॉमिक नीड्स का ध्यान रखता है सिटीजन्स के, एंड इसका एक एग्जाम्पल है चाइना।
जहाँ पर गवर्नमेंट सारी एक्टिविटीज़ रेगुलेट करती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करती हैं और अपने इंडिविजुअल्स, अपने सिटीजन्स का ध्यान रखती हैं। नाउ वी कम टू टोटलिटेरियन स्टेट, ऐसी स्टेट जहाँ पर गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं और इंडिविजुअल्स के पास कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब ऐसी स्टेट जहाँ पर स्टेट गलत भी कर सकती है, स्टेट कैन डू रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो, एंड तब भी इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं होगा। एंड पूरा इंडिविजुअल की जितनी भी लाइफ है, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, प्रिवेसी, सब कुछ स्टेट के अंडर होगी। स्टेट कंट्रोल कर सकती है एक इंडिविजुअल की लाइफ को। सो टोटलिटेरियन स्टेट अगर आप देखो, सो इट इज़ नॉट एट ऑल एन आइडियल स्टेट, रैदर इट इज़ ऑपोजिट टू द आइडियल स्टेट, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स, एंड इंडिविजुअल्स के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। Then we come to modern welfare state. Now this is again an ideal state because modern welfare state का काम होता है law and order maintain करना अपनी कंट्री में, justice को establish करना, defense और public security का ध्यान रखना, friendly foreign relations maintain करना दूसरी countries के साथ, public health पर focus करना, ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना, सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, बैंकिंग, करेंसी, प्रिजर्व द फॉरेस्ट, कंट्रोल द प्राइसेस, ये सारी एक्टिविटीज़ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के अंडर आती हैं। सो ऐसी स्टेट जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ का ध्यान स्टेट रखती है, लाइक वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ का अगर ध्यान स्टेट रख रही है तो हम उसको बोलेंगे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। और ये मॉडर्न वेलफेयर स्टेट ट्राई करती है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी लोग सोशल यूनिटी में एक साथ रहें, और वीकर सेक्शंस अगर कोई हैं तो उन्हें भी बेनिफिट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वीकर सेक्शन ना रहे, ओल्ड पीपल, विडोज़, ऑर्फन्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, एंड जिनकी वेज मिनिमम है, जिनकी सैलरी मिनिमम है, उनको भी बेनिफिट दिया जाए। This brings us to the last topic of Unit 1, that is concept of nation. Now I told you that concept of nation का मतलब होता है country and state का मतलब भी होता है country. But now we will see specifically कि nation as a term का मतलब क्या है. So nation is derived from the term natio, जिसका मतलब है to be born. It means people are brought together by the ties of blood relationship. मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एक्चुअली अ पर्सन इज बीइंग बोर्न, तो वो जगह उसका नेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज बीइंग बोर्न इन इंडिया, सो इंडिया विल बी द नेशन फॉर दैट चाइल्ड। सो नेशन इज अ बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट एंड लैंग्वेज। कॉमन डिसेंट का मतलब है अगर ऑल द पीपल जितने भी इंडिया में बॉर्न हो रहे हैं वो सारे कॉमन डिसेंट से कनेक्टेड हैं, बिकॉज जितने भी लोग इंडिया में बॉर्न हो रहे हैं दे आर कनेक्टेड बाय अ कॉमन थिंग कि वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, सो उनमें कॉमन डिसेंट है। कॉमन लैंग्वेज मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में देखें तो अगर सभी लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, सो इट मीन्स दे आर यूनाइटेड बाय द सेम लैंग्वेज। Barker is a person, he said, he gave a definition that nation is a body of persons inhabiting a definite territory, मतलब एक जगह पे वो एक साथ रह रहे हैं, and they are united together by a fact of living together on the common land. So अगर हम एग्जाम्पल लें इंडिया का, जितने भी लोग इंडिया में एक साथ रह रहे हैं they all are said to be living in a nation. वर्ल्ड बुक डिक्शनरी डिफाइन करती है नेशन को ऐसे लोग जो सेम कंट्री में रह रहे हैं, सेम गवर्नमेंट के अंडर हैं और सेम लैंग्वेज स्पीक करते हैं। सो नेशन एक और डेफिनेशन है कि नेशन मीन्स जो कॉमन रेस ऑफ पीपल हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स कॉमन है, उनकी लैंग्वेज कॉमन है, कल्चर कॉमन है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस कॉमन है और कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड है। सो इन सब में से एक बात भी हो सकती है या सारी भी हो सकती हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लें तो वी आर नेशन बाय द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हम सब एक साथ क्यों आए? बिकॉज हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी ब्रिटिशर्स के रूल से। सो वी ऑल केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट देम एंड हेंस वी फॉर्म्ड आवर ओन नेशन, दैट इज इंडिया।
एंड दैट्स ऑल विद आवर चैप्टर 1. अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक ऑन द वीडियो, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई जीमेल ID. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे.